हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो 6 बजे से 11 बजे वाले सेशन में आपका स्वागत है। तो इस सेशन में हम क्या करेंगे, 2 घंटा पढ़ेंगे एंड देन विल टेक अ ब्रेक फॉर 1 आवर एंड उसके बाद फिर 2 घंटा पढ़ेंगे। तो इस तरह हम 5 घंटे को डिवाइड कर रहे हैं। तो 6 से 11 के सेशन में इस तरह हमारा होगा। वैसे ब्रेक मतलब आप कुछ भी स्टडी से रिलेटेड वीडियो देख सकते हो। ओके। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्डियक मसल के बारे में एंड फिर इसके बाद देखेंगे शॉक के बारे में। सो गाइस, ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो हम कर रहे हैं फिजियोलॉजी महामैराथन एंड दैट विल बी डूइंग एवरीथिंग अबाउट द क्वेश्चन पेपर। तो अब हम बात करते हैं कार्डियक मसल के बारे में। तो गाइस, हमारा मॉर्निंग 6 to 11 सेशन होता है एंड इवनिंग 6 to 11 सेशन होता है एंड देन 1 to 6 PM वाला सेशन होता है एंड 10 to 1 वाला सेशन हमारा क्विज सेशन होता है। सो लेट्स सी। तो अब हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्मूथ मसल, उसके बाद हम बात करेंगे कार्डियक मसल के बारे में। सो द प्रॉपर्टीज़ ऑफ विसरल स्मूथ मसल में बी डिफाइंड into three categories. Into three categories, the properties of visceral smooth muscles may be divided into three categories. Many elliptical properties of smooth muscle are described. Other important properties are discussed. So अब हम बात करें थ्री कैटेगरीज। द प्रॉपर्टीज ऑफ स्मूथ मसल इज डिवाइड इंटू थ्री कैटेगरीज। तो एक होता है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी और बाकी की प्रॉपर्टीज अब डिस्कस करते हैं। सो contractile response. In response to a stimulus, the visceral smooth muscles slow a prolonged contraction that has a low initiation and the relaxation also takes a longer time. The latent period is 100 to 200 milliseconds. The contraction period can be 200 to 500 milliseconds or even more. The relaxation period extends into 500 milliseconds. In response to a stimulus दिया, हमने कोई स्मूथ मसल को स्टिमुलस दिया, तो the visceral smooth muscle show a prolonged contraction that has a low initiation. The relaxation also takes longer time. तो गाइस, हमारा टारगेट होगा कि 1 घंटे में हम ये पेपर को कंप्लीट करें। तो हमारा चल रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है प्रॉपर्टीज ऑफ स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल। ठीक है। In response to a stimulus, the visceral smooth muscles show a prolonged contraction that has a slow initiation and the relaxation also takes longer time. The latent period is 100 to 200 milliseconds. The contraction period can be 200 to 500 milliseconds or even more. The relaxation period extends into 500 milliseconds. Contractile response. In response to a stimulus, the visceral smooth muscles show a prolonged contraction that has a slow initiation and the relaxation also takes longer time. The latent period is 100 to 200 millisecond. The contraction period can be 200 to 500 millisecond or even more. So in response to a stimulus, आपने एक स्मूथ मसल को स्टिमुलस दिया, तो क्या हुआ, it shows a prolonged contraction that has a slow initiation and the relaxation also takes longer time. इनिशिएशन के लिए भी टाइम लगेगा और रिलैक्सेशन के लिए भी टाइम लगेगा. सो द लेटेंट पीरियड इज 100 to millisecond. द कंट्रैक्शन पीरियड कैन बी 200 to 500 millisecond और इवन मोर. द रिलैक्सेशन पीरियड्स एक्सटेंड इनटू फ्यू 100 milliseconds. तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्मूथ मसल देखें तो 3 प्रॉपर्टीज़ होते हैं: मॉर्फोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़. तो आज से आपको ये हर वक्त रखते रहना है कि स्मूथ मसल की 3 प्रॉपर्टीज़ होता है: मॉर्फोलॉजिकल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल. मॉर्फोलॉजिकल में लैक ऑफ स्ट्राइशंस, absence of troponin, absence of T tubules, absence of well developed neuromuscular junctions.
Electrical properties: presence of gap junctions, sensation property, excitability, variable RMP and shifting pacemakers, variable action potentials. Mechanical properties: tonus, plasticity, slow and prolonged conductor response, lengthwise relationship and muscle hypertrophy. So these are the things. So morphological properties: lack of striations, absence of troponin, absence of T tubules, absence of well developed neuromuscular junction. तो इनके पास वेल डेवलप न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एब्सेंट होता है. सो मॉर्फोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़: लैक ऑफ स्ट्राइशंस, इनके पास स्ट्राइशंस नहीं होती, एब्सेंस ऑफ ट्रोपोनिन, एब्सेंस ऑफ टी ट्यूब्यूल्स, एब्सेंस ऑफ वेल डेवलप न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस. इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़: प्रेजेंस ऑफ गैप जंक्शंस. Sensation property: excitability, variable RMP and shifting pacemakers, variable action potentials. तो गाइस आप कोशिश करिए कि इन 7 दिनों में हम पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लें बाय स्टडिंग 17 आवर्स पर डे. एंड क्योंकि बाकी के जो आवर्स हैं हम सोएंगे, राइट. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 7 hours left to sleep also. सो हम कोशिश करेंगे कि इन 17 आवर्स में, इन 7 दिनों में, इन 120 आवर्स में हम कोशिश करें कि हम पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दें. उसके बाद सिर्फ रिवीजन बचे. ओके. सो कॉन्ट्रैक्टाइल रेस्पॉन्स में अगर आप देखें तो जो स्मूथ मसल है उसको जब हम स्टिमुलस देते हैं तो उसका कॉन्ट्रैक्शन टाइम प्रोलॉन्ग्ड होता है, स्लो इनिशिएशन होता है और स्लो रिलैक्सेशन होता है. लेटेंट पीरियड 100 to 200 मिली सेकेंड्स होता है. कॉन्ट्रैक्शन जो है 200 to 500 मिली सेकेंड्स और इवन में द रिलैक्सेशन पीरियड एक्सटेंड्स टू 500 मिली सेकेंड्स. सो मॉर्फोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है? उसके पास स्ट्राइशंस नहीं होती हैं, एब्सेंस ऑफ ट्रोपोनिन, एब्सेंस ऑफ टी ट्यूब्यूल्स एंड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन भी एब्सेंट होता है, वेल डेवलप नहीं होता है. ओके. इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़: प्रेजेंस ऑफ गैप जंक्शंस. Sensation property: excitability, variable RMP and shifting pacemakers, variable action potentials. Variable action potentials. ओके. उसके बाद हम बात करते हैं मसल टोन के बारे में. मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में आपको टोनस दिखेगा, मसल टोन, प्लास्टिसिटी, स्लो एंड प्रोलॉन्ग कॉन्ट्रैक्टाइल रेस्पॉन्स, लेंथवाइज रिलेशनशिप, force velocity relationship and smooth muscle hypertrophy. Muscle tone: visceral smooth muscles are continuously in a state of spontaneous irregular contraction known as tonus, which occurs due to generation of basic slow wave rhythm. In blood vessels, especially the arterioles, this muscle tone helps to maintain the blood pressure without much expenditure of energy. The multi-unit smooth muscles do not exhibit the inherent muscle tone. So muscle tone: visceral smooth muscles are continuously in a state of spontaneous irregular contraction known as tonus, which occurs due to generation of basic slow wave rhythm. Muscle tone: visceral smooth muscles are continuously in a state of spontaneous irregular contraction known as tonus. तो जो विसरल स्मूथ मसल्स होते हैं दे आर कंटिन्यूसली इन अ स्टेट ऑफ स्पॉन्टेनियस इरेगुलर कंट्रैक्शंस को टोनस बोलते हैं. टोनस होता है एक स्पॉन्टेनियस इरेगुलर कंट्रैक्शन. व्हाट इज़ टोनस? स्पॉन्टेनियस इरेगुलर कंट्रैक्शन. टोनस क्या होता है? स्पॉन्टेनियस इरेगुलर कंट्रैक्शन. स्पॉन्टेनियस इरेगुलर कंट्रैक्शन को हम टोनस बोलते हैं. व्हाट इज़ टोनस? स्पॉन्टेनियस इरेगुलर कंट्रैक्शन. तो spontaneous irregular contractions is called tonus. So visceral muscles are continuously in a state of spontaneous irregular contractions. Spontaneous irregular contractions is called tonus. So visceral muscles are always in a state of continuously in a state of spontaneous irregular contraction, tonus, known as tonus, which occurs due to generation of a basic slow wave rhythm. Due to generation of basic slow wave rhythm. In blood vessels, especially the arterioles, this muscle tone helps to maintain the blood pressure without much expenditure of energy. Without much expenditure of energy. ठीक है. तो visceral smooth muscles are continuously in a state of
spontaneous irregular contractions is known as a tonus. It is due to generation of basic slow wave rhythm. Basic rhythm रहता है, एक basic slow wave rhythm रहता है, basic slow wave rhythm रहता है. ठीक है, बेसिक स्लो वेव रहता है. इन ब्लड वेसल्स स्पेशली द आर्टेरियोज दिस मसल टोन हेल्प्स टू मेंटेन द ब्लड प्रेशर विदाउट मच एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी. इन ब्लड वेसल्स स्पेशली जो आर्टेरियोज होता है, द मसल टोन हेल्प्स टू मेंटेन द ब्लड प्रेशर विदाउट मच एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी. तो इन ब्लड वेसल्स स्पेशली जो आर्टेरियोज होता है, वहाँ पे जो मसल टोन है हेल्प्स टू मेंटेन द ब्लड प्रेशर विदाउट एक मच एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी. ब्लड प्रेशर मेंटेन करने में हेल्प करता है बिना ज़्यादा एनर्जी के खर्चा हुए. सो इन ब्लड वेसल्स स्पेशली द आर्टेरियोज दिस मसल टोन हेल्प्स टू maintain the blood pressure without much expenditure of energy. Without much expenditure of energy, this basic slow wave rhythm, 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 basic slow wave rhythm. Because of basic slow wave rhythm, the visceral smooth muscles are continuously in a state of spontaneous irregular contractions. Spontaneous irregular contractions called tonus. Because of this, the blood pressure is maintained. Because blood vessels, arterioles especially, they are made up of visceral muscles. The multi-unit smooth muscles do not exhibit the inherent muscle tone. They do not exhibit inherent muscle tone. They do not exhibit inherent muscle tone. They do not exhibit inherent muscle tone. The multi-unit smooth muscle do not exhibit the inherent muscle tone. Length tension relationship. The length tension relationship is variable in smooth muscles. When a smooth muscle is stretched, it initially shortens and exerts tension. Length tension relationship. The length tension relationship is variable in smooth muscles. When a smooth muscle is stretched, it initially shortens and exerts tension. The length tension relationship is variable in smooth muscles. When a smooth muscle is stretched, it initially shortens and exerts tension. When a smooth muscle is stretched, it initially shortens and exerts tension. So what is length tension relationship? The length tension relationship is variable in smooth muscle. When a smooth muscle is stretched, it initially shortens and exerts tension. When a smooth muscle is stretched, it initially shortens and exerts tension. The length tension relationship is variable in smooth muscles. When a smooth muscle is stretched, it initially shortens and exerts tension. The length tension relationship is variable in smooth muscles. When smooth muscle is stretched, it initially shortens and exerts tension. It initially shortens and exerts tension. So when a smooth muscle is stretched, it initially shortens and exerts tension. तो एक स्मूथ मसल को बहुत ज़्यादा स्ट्रेच कर देते हो तो क्या होता है, वो पहले तो छोटा होता है, उसके बाद टेंशन एक्सर्ट करता है. स्ट्रेच कर रहे हो, इनिशियली वो छोटा होता है, बाद में बड़ा होता है. सो इफ द स्ट्रेच इज़ मेंटेन ग्रेजुअली द टेंशन डिक्रीजेस. अगर आप स्ट्रेच को मेंटेन करके रखते हो तो टेंशन जो है वो कम होने लगता है. इफ द स्ट्रेच इज़ इंक्रीज्ड, the tension may not rise proportionally, or at a particular length the tension may increase considerably. तो स्ट्रेच इंक्रीज़ कर रहे हो, टेंशन बढ़ रहा है, बढ़ भी सकता, नहीं भी बढ़ सकती, लेकिन एक पर्टिकुलर ऐसा लेंथ होगा जहाँ पे टेंशन बहुत ज़्यादा होगी. Thus the relationship is highly inconsistent. The relationship is highly inconsistent. So the adaptability of the smooth muscle to the new length with less increase in tension is known as plasticity, which is based on the latch bridge phenomenon. So अगर कोई फैकल्टी आपसे पूछे स्मूथ मसल की प्रॉपर्टीज़ बताओ, आपको बताना है द प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्मूथ मसल आर डिवाइड इनटू 3 टाइप्स: मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ एंड morphological properties. Morphological properties: they lack striations, they lack T-tubules, they lack troponin, there is absence of or less developed neuromuscular junction. And electrical properties, you can say presence of gap junctions, excitability, variable RMP and shifting pacemakers,
variable action potential. So you can say variable action potentials, variable resting membrane potential, shifting pacemaker, excitability, presence of gap junctions. इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज यू कैन से गैप जंक्शंस होते हैं भाई उनके पास होते हैं गैप जंक्शंस. बोल सकते हो एक्साइटेबिलिटी, सारे मसल्स एक्साइटेबल रहते हैं, राइट. वेरिएबल आरएमपी एंड शिफ्टिंग पेसमेकर्स होता है इनके पास. पेसमेकर बदलते रहता है, आरएमपी बदलते रहता है, एक्शन पोटेंशियल्स बदलते रहते हैं. मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में टोनस, प्लास्टिसिटी, स्लो एंड प्रोलॉन्ग कॉन्ट्रेक्टाइल रिस्पॉन्स, लेंथ टेंशन रिलेशनशिप, फोर्स वेलोसिटी रिलेशनशिप और मसल की आप हाइपरट्रोफी देख सकते हो. जो मसल है वो हाइपरट्रोफी होता है उसका, जो मसल है उसका हाइपरट्रोफी होता है. मसल टोन में क्या है, जो मसल है इज केप्ट इन द विसरल मसल्स आर continuously in a spontaneous irregular contractions. This is called tonus, and because of this the blood pressure is maintained, because the blood vessels, especially arteries, are in continuous tonicity. Because of it, blood pressure is maintained without much expenditure of energy. The multi-unit smooth muscles do not exhibit the inherent muscle tone. So the smooth muscles जो है उनका मल्टी यूनिट होता है, so they do not exhibit the inherent muscle tone. They do not exhibit inherent muscle tone. लेंथ टेंशन रिलेशनशिप देखते हैं तो जो स्मूथ मसल्स हैं, जब आप एक स्मूथ मसल को स्ट्रेच करते हो, when the smooth muscle is stretched, initially shortens and then it exerts tension. तो पहले वो शॉर्ट होता है, उसके बाद वो टेंशन एक्सर्ट करता है. अगर स्ट्रेच को आप मेंटेन रखते हो तो ग्रेजुअली द टेंशन डिक्रीजेस. लेकिन अगर आप स्ट्रेच को इंक्रीज़ करते हो तो इट इज़ टेंशन भी प्रोपोर्शनली इंक्रीज़ होगा, ऐसा नहीं है. एक पर्टिकुलर लेंथ के लिए टेंशन इंक्रीज़ होगा. तो ये रिलेशन कोई कंसिस्टेंट नहीं है, हाईली इनकन्सिस्टेंट है. The adaptability of the smooth muscle to the new length with less increase in tension is known as plasticity. मसल जो है एक पर्टिकुलर लेंथ में टेंशन को बैलेंस करके रख रहा है, इंक्रीज नहीं होने दे रहा ज़्यादा, तो उसको बोलते हैं प्लास्टिसिटी, विच इज़ बेस्ड ऑन द लैच ब्रिज फिनोमिनन. तो लैच ब्रिज फिनोमिनन के ऊपर बेस्ड है. लैच ब्रिज फिनोमिनन. स्ट्रेस रिलैक्सेशन. In blood vessels, the feature is also known as stress relaxation that helps to maintain BP within the normal range in spite of sudden rise in pressure. Stress relaxation. In blood vessels, this feature is also known as stress relaxation that helps to maintain BP within the normal range in spite of sudden rise in pressure. स्ट्रेस रिलैक्सेशंस क्या है, कौन सा लैच ब्रिज फिनोमिनन के बेसिस पर बता सकते हो. प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिसिटी. जो मसल है उसके पास प्लास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होती है, मतलब एक नए लेंथ को अडेप्ट करता है और टेंशन को ज़्यादा इंक्रीज़ करने नहीं देता. दैट इज़ द प्लास्टिसिटी एंड यू कैन एक्सप्लेन दिस बाय लैच ब्रिज फिनोमिनन. स्ट्रेस रिलैक्सेशन. इन ब्लड वेसल्स दिस फीचर इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रेस रिलैक्सेशन दैट हेल्प्स टू मेंटेन बीपी विदाउट द नॉर्मल रेंज इन स्पाइट ऑफ सडन राइज इन प्रेशर. In blood vessels, this feature is also known as stress relaxation that helps to maintain BP within the normal range in spite of sudden rise in pressure. तो एक चीज़ होता है हमारे पास स्ट्रेस रिलैक्सेशन. स्ट्रेस रिलैक्सेशन में क्या होता है, ये ब्लड वेसल्स के पास होता है. ज़्यादा प्रेशर बढ़ने पर भी ब्लड वेसल्स मेंटेन करके रखते हैं BP. इन स्पाइट ऑफ सडन राइज इन प्रेशर ज़्यादा हो गया फिर भी ब्लड वेसल्स बीपी को मेंटेन करके रखते हैं. दिस इज कॉल्ड स्ट्रेच रिलैक्सेशन. ठीक है. प्रेशर सडनली इंक्रीज हो गया फिर भी बीपी मेंटेन है. अब बात करते हैं रिसेप्टिव रिलैक्सेशन. हॉलो विसरा, जैसे हमारे पास स्टमक है, लार्ज वॉल्यूम ऑफ फूड एंड फ्लूइड कैन बी अकोमोडेटेड विदाउट एन अनड्यू इंक्रीज इन इंटरनल प्रेशर और रिसेप्टिव रिलैक्सेशन. बहुत ज़्यादा फूड और फ्लूइड एक्यूमुलेट कर सकते हो विदाउट मच इंक्रीज इन इंटरनल प्रेशर. दिस इज़ ड्यू टू रिसेप्टिव रिलैक्सेशन. तो यहाँ पे एक चीज़ होती है दैट इज़ रिसेप्टिव. रिसेप्टिव मतलब आप लेके भी खुश हो, ज़्यादा फूड एकोमोडेट कर पा रहे हो, फ्लूइड एकोमोडेट कर पा रहे हो और ज़्यादा प्रेशर भी बढ़ने नहीं दिया. दिस इज़ रिसेप्टिव रिलैक्सेशन, है ना. फोर्स वेलोसिटी रिलेशनशिप. ओह माय गॉड, आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम.
Force velocity relation compared to the skeletal muscles, smooth muscles have a low myosin ATPase activity. तो compared to skeletal muscle, तो ध्यान से यहाँ पे सुनिए, compared to skeletal muscle, compared to skeletal muscles, smooth muscles have a low myosin ATPase activity, less number of cross bridges and a slower rate of cross bridge cycling. तो जो हमारे पास है फोर्स वेलोसिटी रिलेशनशिप कंपेयर टू स्केलेटल मसल्स, जो स्मूथ मसल्स हैं उनके पास लो मायोसिन एटीपीएस एक्टिविटी कंपेयर टू स्केलेटल मसल्स। जो स्मूथ मसल्स होते हैं उनके पास जो मायोसिन होता है उसका जो एटीपीएस एक्टिविटी है मायोसिन के अंदर वो कम होती है। लेस नंबर ऑफ क्रॉस ब्रिजेस एंड स्लो रेट ऑफ क्रॉस ब्रिज साइकिलिंग, क्रॉस ब्रिज साइकिलिंग भी स्लो होता है, क्रॉस ब्रिजेस भी कम बनते हैं। तो दिस फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू स्लो कंट्रैक्शन वेलोसिटी। वैरायटी ऑफ फोर्स वेलोसिटी ग्राफ्स obtained in response to different stimuli. तो स्मूथ मसल हाइपरट्रोफी, ग्रोथ एंड प्रोलिफरेशन ऑफ वास्कुलर स्मूथ मसल्स आर स्टिमुलेटेड बाय वैरायटी ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स, हाइपरट्रोफी ऑफ यूटेरस एंड हाइपरट्रोफी ऑफ वास्कुलर स्मूथ मसल्स। देखो जो ग्रोथ एंड प्रोलिफरेशन है वास्कुलर स्मूथ मसल्स आर स्टिमुलेटेड वैरायटी ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि हमारा यूटेरस हाइपरट्रोफी होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, दिस इज द टिपिकल एग्जांपल। हाइपरट्रोफी ऑफ वास्कुलर स्मूथ मसल्स अकर इन क्रॉनिक हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन के टाइम पे जो वास्कुलर स्मूथ मसल है उसकी हाइपरट्रोफी होती है ना, उसकी क्या होती है, उसकी होती है हाइपरट्रोफी। अब हम बात कर, देखो हमने ये देखा मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, इलेक्ट्रिकल फीचर्स एंड दी प्रॉपर्टीज़ एंड दी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। मॉर्फोलॉजिकल में देखा कि जो स्मूथ मसल है वो लैक्स स्ट्राइशंस, उनके पास ट्रोपोनिन नहीं होता, उनके पास टिब्यूल्स नहीं होते, उनके पास न्यूरोमस्कुलर जंक्शन नहीं होता। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ में देखें तो उनके पास गैप जंक्शंस होता है और उनके पास पेस मेकर्स होते हैं, लेकिन वो पेस मेकर्स शिफ्टिंग पेस मेकर्स होते हैं, शिफ्ट होते हैं। उनके पास जो आरएमपी है, एक्शन पोटेंशियल से वो वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल होते रहते हैं एंड एक्साइटेबिलिटी है उनके पास। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में उनके पास टोनस है, मतलब स्ट्रॉन्ग इरेगुलर कंट्रैक्शंस, कंटिन्यूस स्पॉन्टेनियस इरेगुलर कंट्रैक्शंस। प्लास्टिसिटी मीन्स with increase in length there is not much increase in the tension, the muscle gets adapted to the new length and it will with less increase in the tension। तो इसके बारे में हमने भी स्ट्रेस रिलैक्सेशन, जब स्ट्रेस रिलैक्सेशन कब होता है, जब प्रेशर ज़्यादा हो गया लेकिन तब भी ब्लड वेसल्स आपका बीपी मेंटेन करके। रिसेप्टिव रिलैक्सेशन के टाइम पे भी आपका इंटरनल प्रेशर जो है जैसे बहुत ज़्यादा खाना खा लिया फिर भी स्टमक के जो स्मूथ मसल्स है वो इंटरनल प्रेशर को ज़्यादा बढ़ने नहीं दिया। फोर्स वेलोसिटी रिलेशनशिप में हमने देखा कि इनके पास जो मायोसिन की जो एटीपीएस एक्टिविटी होती है वो बहुत कम है और क्रॉस ब्रिजिंग भी कम है एंड क्रॉस ब्रिज साइकिलिंग कम है। सो इन फैक्टर्स की वजह से स्लोअर कंट्रैक्शन होता है। वैरायटी ऑफ फोर्स वेलोसिटी ग्राफ्स भी देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं स्मूथ मसल हाइपरट्रोफी। स्मूथ मसल हाइपरट्रोफी में हाइपरट्रोफी ऑफ यूटरस एंड हाइपरट्रोफी ऑफ जो आपका यूटरस है उसका हाइपरट्रोफी होता है, ब्लड वेसल्स का भी, स्मूथ मसल्स, वास्कुलर स्मूथ मसल्स, ब्लड वेसल्स का। हाइपरटेंशन के टाइम पे ब्लड वेसल्स बड़े हो जाते हैं और यूटरस का तो प्रेगनेंसी के टाइम पे हाइपरट्रोफी होता है। न्यूरोनल एंड हार्मोनल इन्फ्लुएंस देखें तो जो ऑटोनॉमिक कंट्रोल है, द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इन्फ्लुएंसेस द इंट्रिंसिक रिथमिक पेसमेकर्स एक्टिविटी ऑफ विसरल स्मूथ मसल्स। Okay. Nerve and hormonal influence.
Autonomic control. The autonomic nervous system influences the intrinsic rhythmic or pacemaker activity of visceral smooth muscles. The effect of sympathetic or parasympathetic stimulation depends on the type of receptors involved and the second messengers released subsequently. For example, in GI system, parasympathetic stimulation is excitatory and sympathetic is inhibitory, whereas the effects are opposite in blood vessels. ऑटोनॉमिक कंट्रोल में अगर हम देखें तो जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, इट इन्फ्लुएंसेस द इंट्रिंसिक रिथमिक और पेसमेकर एक्टिविटी ऑफ विसरल स्मूथ मसल्स. सो जो नर्व देखें, आपका सिर्फ जो आपका जो टारगेट होना चाहिए, आपका जो फोकस होना चाहिए, जो आपका प्रायोरिटी होना चाहिए, यू शुड गेट ऑब्सेस्ड विथ योर स्टडीज़. आपको आपका गोल, आपका गोल्ड मेडल चाहिए तो आपको ऑब्सेस्ड रहना चाहिए अपने स्टडीज़ की. तो आपको पढ़ना है एंड पढ़ना है, बोलना नहीं है, बस पढ़ के दिखाना है, पढ़ना है एंड मार्क्स भी लाना है, रिप्रेजेंट करने आना चाहिए नेचुरली. यूरिन हार्मोनल इन्फ्लुएंस में देखें, जो ऑटोनॉमिक कंट्रोल है, ऑटोनॉमिक नर्वस इन्फ्लुएंस इंट्रिंसिक रिथमिक और पेसमेकर एक्टिविटी ऑफ विसरल स्मूथ मसल्स. तो जो ऑटोनॉमिक कंट्रोल है उसमें ये होता है जो इंट्रिंसिक मतलब जो पेसमेकर एक्टिविटी है या इंट्रिंसिक रिथम है वो इन्फ्लुएंस होता है. द इफेक्ट ऑफ सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथिक स्टिमुलेशन डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ रिसेप्टर्स इन्वॉल्व एंड द सेकेंड मैसेंजर्स रिलीज सब्सिक्वेंटली. For example, in GI system, parasympathetic stimulation is excitatory and sympathetic is inhibitory, whereas the effects are opposite in blood vessels. ठीक है, तो जो ऑटोनॉमिक की बात करते हैं आपके दिमाग में जो सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक, जब भी ऑटोनॉमिक की बात कर रहे हैं आपके दिमाग में सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक, ऑटोनॉमिक सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक, ऑटोनॉमिक सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक, ऑटोनॉमिक सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक. The effect of sympathetic parasympathetic depends upon the receptor involved and the second messengers. रेसेप्टर क्या है और सेकेंड मैसेंजर्स के ऊपर. जैसे कि जीआई में पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेट करता है, स्टिमुलेट करता है, एक्साइटरी होता है, और सिंपैथेटिक इनहिबिटरी होता है, वेराज इफेक्ट्स आर ऑपोजिट इन ब्लड वेसल. Hormonal control. Nitric oxide is released from endothelial cells binds to the receptors present in the sarcolemma of vascular myocyte. No receptor complex stimulates guanylyl cyclase and forms CGMP, which activates CGMP dependent protein kinase. This protein kinase reduces relaxation of vascular smooth muscle by increasing calcium reuptake by SR, opening of calcium activated potassium channels, and decreasing IP3 induced calcium release by inhibitors phospholipase C. Other hormones, angiotensin 2 activating via angiotensin 2 receptors, vasopressin, endothelin stimulation contraction of smooth muscles by releasing IP3, adenosine cause relaxation by increasing the level of CMP. तो ऑटोनॉमिक में सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक डिपेंड्स अपॉन दी स्टिमुलेशन, डिपेंड्स अपॉन दी रेसेप्टर क्या है और सेकेंडरी मैसेंजर क्या है. सेकेंड मैसेंजर जीआई पैरासिम्पैथेटिक एक्साइटेटरी है एंड सिंपैथेटिक इनहिबिटरी है. ब्लड वेसल्स के लिए उल्टा है. हार्मोनल कंट्रोल में नाइट्रिक ऑक्साइड देखने को मिलेगा आपको. जो नाइट्रिक ऑक्साइड है रिलीज फ्रॉम द एंडोथेलियल सेल्स बाइंड टू रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन द सार्कोलेमा ऑफ वास्कुलर मायोसाइट. जो ब्लड वेसल्स के जो स्मूथ मसल्स होते हैं, विसरल मसल्स होते हैं ब्लड वेसल के, उनका जो सार्कोलेमा है उसके ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं. NO, nitric oxide is released from the endothelial cells. Nitric oxide is released from the endothelial cells, and this nitric oxide binds to the nitric oxide released from the endothelial cells bind to the receptors. These receptors are present on the NO is released from endothelial cells binds to receptors present on the sarcolemma of vascular myocyte. NO receptor complex stimulates guanylyl cyclase and forms cyclic GMP, which activates CGMP dependent protein kinase. जो NO receptor complex है, it stimulates guanylyl cyclase and forms CGMP.
which activates CGMP dependent protein kinase. The protein kinase produces relaxation of vascular smooth muscles by increasing calcium reuptake by SR sarcoplasmic reticulum, opening of calcium activated potassium channels, and decreasing IP3 induced calcium release by inhibiting phospholipase C. तो नाइट्रिक ऑक्साइड कैसे काम करता है? देखो, नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज्ड फ्रॉम द एंडोथेलियल सेल्स. तो जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो एंडोथेलियल सेल्स रिलीज़ करते हैं. नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज़ होने के बाद वो जो रेसेप्टर्स हैं, किसके ऊपर रेसेप्टर? सार्कोलेमा ऑफ वास्कुलर मायोसाइट, वास्कुलर मसल के ऊपर, विसरल मायोसाइट के ऊपर जो वास्कुलर मसल है उसके ऊपर जो सार्कोलेमा है उसके ऊपर जो रेसेप्टर्स हैं उस पर एनओ बाइंड करता है. एनओ आता कहाँ से? एंडोथेलियल सेल से. अब एनओ आने के बाद वो एनओ क्या करता है? नाइट्रिक ऑक्साइड, वो नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है? जो साइक्लिक एएमपी पाथवे है उसको एक्टिवेट करता है. स्टिमुलेट्स ग्वानिलाइल साइक्लेज. तो जो एनओ रेसेप्टर कॉम्प्लेक्स है वो स्टिमुलेट करता है ग्वानिलाइल साइक्लेज. ग्वानिलाइल साइक्लेज बनाता है सीजीएमपी. सीजीएमपी एक्टिवेट करता है सीजीएमपी डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेस को. अब प्रोटीन काइनेस से रिलैक्सेशन ऑफ वास्कुलर स्मूथ मसल्स करता है. कैसे? तो जो प्रोटीन काइनेस है इंक्रीजेस कैल्शियम रीअपटेक बाय सार्कोप्लास्मिक रेटिकुलम. तो सार्कोप्लास्मिक रेटिकुलम अपना कैल्शियम वापस ले लेगा. तो उसके वजह से ओपनिंग ऑफ कैल्शियम एक्टिवेटेड पोटेशियम चैनल्स, डिक्रीजिंग IP3 इंड्यूस्ड कैल्शियम रिलीज बाय इनहिबिटिंग फॉस्फोलाइपेज C. तो इसकी वजह से डिक्रीज होगा IP3 इंड्यूस्ड कैल्शियम रिलीज बाय इनहिबिटिंग फॉस्फोलाइपेज C. फॉस्फोलाइपेज C inhibitor. Other hormones, angiotensin II, acting via AT2 receptors, vasopressin, endothelin, stimulate contraction of smooth muscle by releasing IP3. Adenosine causes relaxation by increasing the level of CMP. By increasing level of CMP. By increasing level of CMP. लेवल ऑफ CMP का लेवल बढ़ने की वजह से एडिनोसिन causes relaxation of smooth muscles. Causes relaxation by increasing the level of CMP. कार्डियक मसल के बारे में बात करते हैं. तो प्रॉपर्टीज ऑफ कार्डियक मसल में आप देखोगे जो मसल्स प्रेजेंट इन हार्ट है वो कार्डियक मसल्स हैं. Muscles present in heart are cardiac muscles. Though they are structurally close to skeletal muscle, they demonstrate many properties of smooth muscles. Details of cardiac muscles. The general features of cardiac muscles are cardiac muscle is an involuntary but striated muscle. Muscles present in heart are cardiac muscles. जो मसल्स आपके हार्ट में प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं कार्डियक मसल्स. Though they are structurally close to skeletal muscle, they demonstrate many properties of smooth muscle. दिखने में स्केलेटल मसल की तरह दिखते हैं लेकिन है नहीं, और प्रॉपर्टी स्मूथ मसल की तरह है लेकिन वो है कार्डियक मसल्स. तो जनरल फीचर्स क्या हैं कार्डियक मसल के? कार्डियक मसल एक इनवॉलेंट्री मसल होता है, लेकिन कार्डियक मसल इनवॉलेंट्री है ये बात सही है लेकिन वो स्ट्राइटेड है. द फाइबर्स आर ब्रांच्ड एंड अटैच्ड विद ईच अदर क्लोजली. इंटरकैलेटेड डिस्क आर प्रेजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टू मसल फाइबर्स. इंटरकैलेटेड डिस्क जो है वो प्रेजेंट होता है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टू मसल्स. न्यूमरस गैप जंक्शंस आर प्रेजेंट इन द इंटरकैलेटेड डिस्क that make cardiac tissue functional syncytia. They show well developed sarcoplasmic reticulum with plenty of cytoplasm. Mitochondria are rich in glycogen. Silent features are depicted. तो अगर आप मुझसे पूछें कि जो स्केलेटल मसल है, स्मूथ मसल है, कार्डियक मसल में क्या फ़र्क है? जो स्केलेटल मसल है मॉर्फोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ में डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो जो स्केलेटल मसल है वो बोन्स पे अटैच्ड होता है, फिक्स टू बोन्स एंड फॉर्म बॉडी मसल्स. कार्डियक मसल हार्ट में ही रहता है, ओनली हार्ट, नॉट अटैच्ड टू बोन, ओनली हार्ट कार्डियक मसल. स्मूथ मसल जो है वो सिंगल है, सिंगल यूनिट स्मूथ मसल,
इन हॉलोड विसरा, एग्जाम्पल इंटेस्टाइन, ब्रोंकाई, यूटेरस, यूरेटस। जो स्मूथ मसल है वो सिंगल यूनिट है, स्मूथ मसल इन हॉलो विसरा, इंटेस्टाइन, ब्रोंकाई, यूट्रस, यूरेटर, ऑल दैट। तो सिंगल यूनिट स्मूथ मसल होता है और जो हॉलो विसरा में रहते हैं, हॉलो ऑर्गन्स में। मल्टी यूनिट मसल जो है वो कैपिलरी मसल, आइरिस में, पिलोमीटर मसल ऑफ स्किन एंड मसल इन ब्लड वेसल्स। तो जो आपका स्मूथ मसल होता है वो सिंगल होता है, सिंगल यूनिट मसल है एंड वो प्रेजेंट होता है हॉलो विसरा में, जैसे कि आपका इंटेस्टाइन हो गया, ब्रोंकाई हो गया, यूट्रस हो गया, यूरेटर हो गया। जो मल्टी यूनिट स्मूथ मसल है वो आपकी कैपिलरी मसल में रहता है, आइरिस में रहता है, पाइलोमीटर मसल ऑफ स्किन, मसल इन ब्लड वेसल्स। वो मल्टीपल नहीं है, सिंगल होता है हॉलो वाले में, सिंगल यूनिट। मल्टी यूनिट कैपिलरी, आइरिस, पिलोमीटर, ब्लड वेसल में मल्टी रहता है। स्ट्राइशंस, वेल डेवलप्ड स्ट्राइशंस स्केलेटल मसल में देख सकते हैं, इसलिए इसको स्ट्राइटेड मसल भी बोलते हैं। हार्ट में ऑल्सो शो क्रॉस स्ट्राइशंस, लैक क्रॉस स्ट्राइशंस, देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्लेन मसल्स। स्मूथ मसल्स में स्ट्राइशंस नहीं होते, इसलिए इसको प्लेन मसल्स बोलते हैं। दे लैक क्रॉस स्ट्राइशंस, हार्ट में होते हैं। साइज एंड शेप, स्केलेटल मसल जो है सिलेंड्रिकल होते हैं और मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। जो कार्डियक मसल है वो शॉर्ट होता है, सिलेंड्रिकल होता है, लॉन्ग होता है, शॉर्ट सिलेंड्रिकल, 100 माइक्रोमीटर लॉन्ग एंड 15 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, मतलब सिलेंड्रिकल है वो। सिंगल न्यूक्लियस फॉर्म्स अ ब्रांचिंग नेटवर्क, न्यूक्लियस सिंगल है, ब्रांचिंग नेटवर्क है। जो स्मूथ मसल है उसके पास स्ट्राइशंस नहीं होते, प्लेन मसल्स होते हैं। और जो साइज़ है उनका स्पिंडल शेप है, सिंगल न्यूक्लियस है, वेरिएबल साइजेस। सार्कोप्लास्मिक रेटिकुलम वेल डेवलप्ड इन स्केलेटल, well developed more than in skeletal in cardiac muscle and poorly developed in smooth muscle. Sarcoplasmic reticulum is poorly developed. सार्कोट्यूबुलर सिस्टम स्केलेटल मसल में होता है, टी सिस्टम होता है ए आई जंक्शन में, ए बैंड और आई बैंड के जंक्शन में, टर्मिनल सिस्टम प्रोमिनेंट। जो स्मूथ मसल, जो कार्डियक मसल है उसके पास भी सार्कोट्यूबुलर सिस्टम होता है, टी सिस्टम होता है, ए आई जंक्शन पे, टर्मिनल सिस्टम प्रोमिनेंट रहता है। और जो स्मूथ मसल है उनके पास होता है लेकिन उतना अच्छे से, नॉट सो कैरेक्टरिस्टिक। नर्व सप्लाई देखो तो सोमैटिक नर्व्स और स्पेशल नर्व एंडिंग्स होता है स्केलेटल मसल में, स्पेशल नर्व एंडिंग्स एंड सोमैटिक नर्व्स, पेन के लिए स्पेशल नर्व एंडिंग्स। कार्डियक मसल में वायर 2 ब्रांचेस, एएनएस विद गैंग्लिया एंड फ्री नर्व टर्मिनल्स। स्मूथ मसल में वायर 2 ब्रांचेस, एएनएस विद गैंग्लिया एंड फ्री नर्व टर्मिनल्स। तो सारे प्रॉपर्टीज स्केलेटल और कार्डियक के जम रहे थे, लेकिन जब तक वो नर्व सप्लाई पे आया, एएनएस पे चले गया वो, और ये आ गया सोमैटिक नर्व्स पे स्केलेटल का। कंट्रोल एंड रिथमिसिटी वॉलेंट्री है ये, कंट्रोल, नो रिथमिसिटी, रिथम नहीं है इसके पास। कार्डियक मसल के पास कॉन्ट्रैक्ट रिथमिकली एंड स्पॉन्टेनियसली इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इनोवेशंस बाय पेसमेकर ड्राइव। रिथमिसिटी 2 टाइप्स, रेगुलर, इरेगुलर डिस्चार्जिंग पेसमेकर। ब्लड सप्लाई ऑक्सीजन कंजम्पशन विथ मॉडरेट ऑक्सीजन कंजम्पशन, मॉडरेट ऑक्सीजन कंजम्पशन होता है स्केलेटल में, और हार्ट में अबंडेंट हाई ऑक्सीजन कंजम्पशन। स्मूथ मसल में लेस ऑक्सीजन कंजम्पशन। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ जो आरएमपी है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, स्केलेटल मसल का -90 मिलीवोल्ट है, कार्डियक मसल का भी -90, और जो स्मूथ मसल है -50, रेंजिंग बिटवीन -30 -70 एंड फ्लक्चुएट होते रहता है। स्मूथ मसल का फ्लक्चुएट होता रहता है, उसके पास रिथमिसिटी है, और 2 टाइप्स की है, रेगुलर रिथमिसिटी एंड इरेगुलर रिथमिसिटी, इरेगुलर डिस्चार्जिंग पेसमेकर।
और जो स्मूथ मसल है उसके पास भी एएनएस है, उसके पास भी गैंग्लिया है, फ्री नर्व एंडिंग्स है, सेम एज कार्डियक मसल। तो कार्डियक मसल के प्रॉपर्टीज़ हम देखते हैं। जो हमने स्मूथ मसल की प्रॉपर्टीज़ देखा, जिसमें हमने देखा मैकेनिकल प्रॉपर्टी देखा, मोर्फोलॉजिकल एंड इलेक्ट्रिकल। मोर्फोलॉजिकल में हमने देखा कि इसके पास जो है स्ट्राइशंस नहीं होते हैं, टीट्यूब्यूल्स उतना अच्छा नहीं होता, एंड ट्यूबुलिन क्या होता है वो ट्रोपोनिन नहीं होता, एंड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन भी वेल डेवलप नहीं रहता। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में हमने देखा इसके पास पेस मेकर्स है, लेकिन फ्लक्चुएटिंग पेस मेकर्स हैं, एंड एक्साइटेबिलिटी है जो सबके पास रहता है, एक्साइटेबिलिटी है, पेस मेकर है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वेरिएबल होता रहता है, -50 लेके चलता है, लेकिन -30 और -70 के बीच में बदलते रहता है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, एक्साइटेबिलिटी है, वेरिएबल आरएमपी, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल से बदलते रहते हैं, एंड इनके पास होता है गैप जंक्शन। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में टोनिसिटी, प्लास्टिसिटी जो हमने देखा, और स्लो एंड प्रोलाउंड रेस्पॉन्स, लेंथ टेंशन रिलेशनशिप, फोर्स वेलोसिटी रिलेशनशिप। फोर्स वेलोसिटी रिलेशनशिप स्लो कॉन्ट्रैक्शन रहता है बिकॉज ऑफ दी एटीपी एज एक्टिविटी जो है, मायोसिन की कम रहती है, क्रॉस ब्रिजेस कम रहते हैं, क्रॉस ब्रिज साइक्लिंग कम रहती है फोर्स वेलोसिटी में देखा। और हमने लेंथ एक्सटेंशन में देखा, प्लास्टिसिटी डिस्कस किया हमने, इनिशियली शॉर्ट एंड एक्सर्ट्स टेंशन। स्मूथ मसल को स्ट्रेस करते हैं तो इनिशियली शॉर्ट रहता है और उसके पास टेंशन रहता है। स्ट्रेच को मेंटेन करके रखेंगे तो जो ग्रेजुअली क्या होगा, जो टेंशन है वो बढ़ेगा, टेंशन जो है कम रहेगा अगर आप स्ट्रेच को मेंटेन करके रखेंगे। लेकिन अगर आप स्ट्रेच को इंक्रीज़ करेंगे, तो आप स्ट्रेच को इंक्रीज़ करने पे क्या होगा, टेंशन बढ़ेगा, और कभी कभार ऐसे भी होगा कि जो टेंशन है नॉट राइज प्रोपोर्शनेटली नहीं है, वो टेंशन में इंक्रीज़ कंसिडरेबली। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कार्डियक मसल की प्रॉपर्टीज इन डिटेल। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्डियक मसल देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कार्डियक मसल। ओके, तो जो हमारा कार्डियक मसल है, हार्ट मसल इज क्लासिफाइड एज स्ट्राइटेड मसल है ये। The myocardial fibers are separated from each other by sarcolemma. Heart muscle is classified as striated muscle and each other by sarcolemma. So the myocardial fibers separated from each other by sarcolemma. Sarcolemma, plasma membrane, cell membrane. The nucleus of the muscle cell is centrally placed. तो जो कार्डियक मसल का न्यूक्लियस है वो बीच में रहता है। हमारा हार्ट भी लेफ्ट साइड तो रहता है, लेकिन बीच में ही मानते हैं, बीच में रहता है, वैसे इसका न्यूक्लियस भी बीच में रहता है। मसल फाइबर्स ब्रांच है, तो कार्डियक मसल फाइबर्स ब्रांच रहेंगे ताकि वो सिग्नल्स ले पाए, राइट। एट द जंक्शंस ऑफ ब्रांचिंग ऑफ फाइबर्स देयर आर स्पेशलाइज्ड एरियाज नोन एज इंटरकैलेटेड डिस्क। जहाँ पे जंक्शंस होते हैं वहाँ पे इंटरकैलेटेड डिस्क होता है, इंटरकैलेटेड डिस्क स्पेशलाइज्ड एरियाज, जहाँ पे जंक्शंस होता है ना, जो ब्रांचिंग के जंक्शंस होते हैं, जहाँ पे ब्रांचिंग फाइबर्स के, जो कार्डियक मसल फाइबर्स के जो ब्रांचिंग जहाँ पे मीट होते हैं, वहाँ पे जो जंक्शन रहता है वहाँ पे रहते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। इंटरकैलेटेड डिस्क में बहुत सारे गैप जंक्शंस होते हैं। ठीक है, गैप जंक्शंस आर एक्टिकल सिनेप्सेस through which the wave of deposition can easily pass through from cell to cell.
गैप जंक्शन एक इलेक्ट्रिकल सिनेप्स होता है, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स, जहाँ पे वेव ऑफ डीपोलराइजेशन कैन ईजिली पास थ्रू फ्रॉम सेल टू सेल। वेव ऑफ डीपोलराइजेशन ईजिली पास कर सकता है, जहाँ पे एक सेल से दूसरे सेल पे ईजिली पास कर सकता है, दैट इज़ द गैप जंक्शंस। तो हार्ट मसल इज क्लासिफाइड एज स्ट्राइटेड मसल। हार्ट मसल एक स्ट्राइटेड मसल होता है, हार्ट मसल एक स्ट्राइटेड मसल होता है, और ये मसल में स्ट्राइशंस होते हैं, एंड ये एक ब्रांचिंग मसल है। यहाँ पे ब्रांचिंग दिखने को मिलता है बहुत ज़्यादा। जो ब्रांचिंग के जंक्शंस हैं वहाँ पे इंटरकैटेड डिस्क होता है, इंटरकैटेड डिस्क में गैप जंक्शन होते हैं। गैप जंक्शन इलेक्ट्रिकल जंक्शंस होते हैं, इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस होते हैं, इलेक्ट्रिकल सिनेप्सेस होते हैं, जहाँ से क्या होता है, वेव ऑफ डीपोलराइजेशन इजीली पास फ्रॉम वन सेल टू अनदर, और इनका न्यूक्लियस सेंट्रली प्लेस्ड होता है। Therefore, when a cardiac muscle cell is stimulated, the electrical impulses spreads rapidly to the other muscle cells and heart contracts as a single unit. तो हार्ट को सिंगल यूनिट में कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जो गैप जंक्शंस है, जो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स है, वो बहुत हेल्पफुल होता है। दिस कार्डियक मसल एक्ट एज अ फंक्शनल सेंसेशन। अपने दिमाग में बिठा लो, सिंगल यूनिट की तरह मसल को एक्ट करने में हेल्प करता है हमारा कार्डियक इंटरकैटेड डिस्क का गैप जंक्शंस। इंटरकैटेड डिस्क प्रेजेंट एट द branching points of the junctions. ठीक है, हार्ट एज अ फंक्शनल सेंसेशन की बात करते हैं। तो जब भी आपको अगर सपोज ऐसा क्वेश्चन आया जहाँ पे सपोज मानते हैं आपको ऐसा क्वेश्चन आया कि राइट द फंक्शंस ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ कार्डियक मसल, आपको लिखना है जो कार्डियक मसल है वो एक स्ट्राइटेड मसल है, जो कार्डियक मसल है उसका न्यूक्लियस बीच में रहता है, एंड कार्डियक मसल फाइबर्स बहुत ब्रांच्ड होते हैं। ब्रांचिंग जंक्शंस पे आपको इंटरकैटेड डिस्क दिखता है, इंटरकैटेड डिस्क में गैप जंक्शंस होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिकल सिनेप्स होता है। जो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स होता है वो वेव ऑफ डीपोलराइजेशन को एक सेल से, एक कार्डियक सेल से दूसरे कार्डियक सेल में स्प्रेड होने में मदद करते हैं, इसलिए हार्ट एक सिंगल यूनिट की तरह कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब उसको स्टिमुलेट करते हैं कार्डियक मसल को, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स स्प्रेड्स रैपिडली टू अदर मसल सेल्स एंड हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एज अ सिंगल यूनिट। हार्ट एज अ फंक्शनल सेंसेशन। ठीक है, तो कुछ और भी बात करने की ज़रूरत है कि हार्ट हैज़ अ फंक्शनल सेंसेशन। सो एक सेंसेशन इज़ डिफाइंड एज अ टिश्यू containing cells with no boundaries. The nuclei are free in the protoplasm. Thus, sensation tissue act as a single unit. The example of a sexual sensation is the muscles in the body wall of the earthworm. I think Sembuich अच्छा था, Symbiotic. तो जो सेंसेशियम है इज डिफाइंड एज अ टिश्यू कंटेनिंग सेल्स विथ नो बाउंड्रीज। ठीक है, सेंसेशियम इज डिफाइंड एज अ टिश्यू कंटेनिंग सेल्स विथ नो बाउंड्रीज। तो एक सेंसेशियम इज डिफाइंड एज अ टिश्यू कंटेनिंग सेल्स विथ नो बाउंड्रीज। तो हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा जल्दी ख़त्म करके हम मिडिल ईयर कैविटी देखते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्डियक मसल स्पेशल प्रॉपर्टीज होते हैं जैसे ऑटोमेटिसिटी, रिथमिसिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एक्साइटेबिलिटी, डिस्टेंसिबिलिटी, कंडक्टिविटी, लॉन्ग रिफ्रैक्टरी पीरियड, एक्स्ट्रासिस्टोल एंड कंपनसेटरी पॉज, ऑल और नन लॉ, staircase phenomenon, length tension relationship, frequency force relationship, load velocity relationship. तो all or none law क्या है? Heart muscle follows all or none law. Definition: all or none law states that the magnitude of response of a tissue to stimulus remains same irrespective of strength of stimuli. So all or none law क्या है?
Definition: all or none law states that the magnitude of response of a tissue to stimuli remains same irrespective of strength of stimuli. 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 Heart muscle follows all or none law. All or none law states that the magnitude of response of a tissue to stimuli remains the same irrespective of the strength of stimuli. सो ऑल एंड नन लॉ क्या बोलता है कि ऑल एंड नन लॉ स्टेट्स दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ अ टिश्यू टू स्टिमुलाई रिमेन्स सेम irrespective of the strength of stimuli. That means if the tissue responds, it responds optimally or it does not respond at all. All or none law states that कि एक सेकेंड, जो ऑल और नन लॉ है Oyanana states that the magnitude of response of a tissue to stimuli remains it states that Oyanana states that the magnitude of response of a tissue to stimulus remains in respect of the strength of stimuli. Strength of stimuli कितना भी strong रहने दो, response of a tissue to stimuli remains same. Magnitude of response of stimuli remains same. Okay. Solon-Nunn law states that कितना भी strong stimulus दे दो, the magnitude of response to the stimuli by the muscle will be same, irrespective of the strength of stimuli. So all-and-none law states that the magnitude of response of a tissue to stimuli remains same irrespective of the strength of the stimuli. That means if the tissue responds optimally or it does not respond at all. कि अगर टिश्यू को रिस्पॉन्ड करना है तो पूरी फुल पोटेंशियल से रिस्पॉन्ड करेगा या फिर नहीं करेगा. तो ये ऐसा है कि कुछ टॉपर्स होते हैं कॉलेजेस में जो क्या करते हैं, पढ़ के आएंगे तो ही एग्ज़ाम लिखेंगे एंड एग्ज़ाम में टॉप करेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो एग्ज़ाम भी नहीं लिखेंगे. मतलब जो टेस्ट होते हैं छोटे टेस्ट, जो बड़े वाले एग्ज़ाम उसमें तो पढ़ना ही पड़ेगा, लिखना ही पड़ेगा ना. तो व्हेन द स्टिमुलस इज ऑफ सब थ्रेशोल्ड स्ट्रेंथ, when the stimulus is of sub-threshold strength, the muscle does not respond to it at all, and if the stimulus is of threshold intensity, the muscle exhibits the optimum response. So when the stimulus is of sub-threshold strength, the muscle does not respond at all, and if the stimulus is of threshold intensity, the muscle exhibits the optimum response. The height of contraction does not increase. The height of contraction does not increase following the application of supra-threshold stimulus. This is called all or none law. 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 So इसको हम बोलते हैं all or none law. ठीक है. So when the stimulus is of sub-threshold strength, the muscle does not respond to it at all. And if the stimulus is of threshold intensity, the muscle exhibits the optimum response. The height of contraction does not increase following the application of supra-threshold stimulus. This is called all or none law. This is called all or none law. Mechanism: all or none law occurs due to two reasons.
all or none nature of the action potential, sensorial nature of the heart muscle, which behaves as a single functional unit. Mechanism. All or none loss occurs due to two reasons. All or none nature of the action potential. All or none nature of action potential का सब थ्रेशोल्ड सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस दोगे आप काम नहीं करेगा. अगर थ्रेशोल्ड दोगे तो वो पोटेंशियली फुल पोटेंशियल तक काम करेगा, ऑप्टिमम रिस्पॉन्स मिलेगा. हाइट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन डज नॉट इंक्रीज फॉलोइंग द एप्लीकेशन ऑफ सुपर थ्रेशोल्ड स्टिमुलस. सुपर थ्रेशोल्ड बहुत ज़्यादा स्टिमुलस दोगे तो भी कुछ फ़ायदा नहीं होगा. ठीक है, ज़्यादा दोगे तो भी काम नहीं करेगा, कम करोगे तो भी काम नहीं करेगा. तो स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस को magnitude of response of a tissue to stimulus remains irrespective of the strength of stimulus. Mechanism all or none law occurs due to two reasons. All or none nature of action potential के ऊपर, sensation nature of heart muscle which behaves as a single functional unit. जो हार्ट है उसका sensation nature है, चाहेंगे तो साथ में, नहीं तो नहीं जाएंगे. Environment should not change. All or none law is appreciable only when the conditions, both internal and external environment, remains same. Both internal and external environments remain same. All or none law is applicable only when the conditions, both internal and external environment, remains same. Both internal and external environment remains same. The response will change if the condition is changed. For example, if heart is stimulated following the sympathetic activation, the magnitude of contraction increases. Sympathetic activation रहेगा. In this case, the excitability and contractility of the heart is changed by sympathetic stimulation and therefore changes in magnitude change in magnitude of contraction. Sympathetic activation में आप stimulus दोगे तो वो increase होगा. Excitability and contractibility of heart is changed by sympathetic stimulation and therefore the change in magnitude of the contraction. ठीक है. एक और लॉ देखते हैं, स्टेट केस फिनोमेनन देखते हैं, उसके बाद एक लॉ देखते हैं. ओके, लॉ देख लेते हैं. Frank-Starling law of heart. This law states that the force of contraction is directly proportional to initial length of the muscle fiber within the physiological limit. ज़्यादा फोर्स ज़्यादा contraction, लेंथ बढ़ेगा. is directly proportional to the length. ज़्यादा contraction ज़्यादा length. This is known as Starling's law of the heart. This explains how the increase in preload and end diastolic volume increases cardiac output. Preload and end diastolic volume. Mechanism. There are four mechanisms to explain Frank-Starling law. The increased end diastolic volume, the initial length of the muscular fiber increases due to increase in chamber size that stretches the muscle fiber. End diastolic volume. Increased end diastolic volume. एंड डायस्टोल में क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है. फिर मसल क्या होता है, उसका इनिशियल लेंथ इंक्रीज हो जाता है, तो चेम्बर का साइज़ बड़ा हो जाता है, मसल स्ट्रेच होता है. विथ इंक्रीज द स्ट्रेच ऑफ मसल फाइबर द इंट्रैक्शन बिटवीन थिक एंड थिन फिलामेंट्स इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन द फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन. फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन बढ़ जाता है. स्ट्रेच ऑफ मसल फाइबर ओपन्स द स्ट्रेच सेंसिटिव कैल्शियम चैनल ऑन द मसल सेल मेम्ब्रेन. मसल फाइबर स्ट्रेच होने की वजह से स्ट्रेच सेंसिटिव कैल्शियम चैनल्स ऑन द सेल मसल सेल ओपन हो जाते हैं, मसल के सेल मेम्ब्रेन. दिस इंक्रीजेज द कैल्शियम इनफ्लक्स इनटू द मायोकार्डियल सेल, दस फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन इंक्रीजेस. जब कैल्शियम इंक्रीज होता है तो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन इंक्रीज हो जाता है. ट्रोपोनिन सी. स्ट्रेच ऑफ मायोकार्डियम एनहांसेस द एफिनिटी ऑफ ट्रोपोनिन सी फॉर कैल्शियम. इंक्रीज इन इंट्रासेलुलर Increase the intracellular calcium ions due to calcium influx from ECF induced by stretch. This is the further release of calcium from sarcoplasmic reticulum by activating the calcium-induced calcium channels. Intracellular calcium ion increase हो गया because of influx of the calcium and because of the stretch. Because of the stretch of the muscle fiber, the stretch-sensitive calcium channels open and they enter into the myocardial cell. And because of that, because of influx of calcium from ECF induced by stretch, increases the further release of calcium from sarcoplasmic reticulum by activating calcium-induced calcium channels present on the cell membrane of this cell organelle. Increased intracellular calcium
present on the membrane of this cell organelle. Increase intracellular calcium increases the force of contraction. Stretch of myocardium enhances the affinity of troponin C for calcium. This increases the binding of calcium to troponin C, which enhances the force of contraction. Excitation contraction coupling देख लेते हैं guys. तो excitation contraction coupling में the mechanism of excitation contraction coupling in cardiac muscle is similar to that of the skeletal muscle. The mechanism of excitation contraction coupling in cardiac muscle is similar to that of the skeletal muscle. The appropriate concentration of sodium potassium in addition to the concentration of calcium is essential for excitation and contraction of cardiac muscle. However, the appropriate contraction of sodium and potassium in addition to the concentration of calcium is essential for excitation and contraction cardiac muscle. सोडियम एंड पोटेशियम चाहिए हमें एक्साइटेशन कंट्रैक्शन कपलिंग के लिए. These ions are needed for the generation of resting membrane potential RMP जनरेट होने के लिए हमें क्या चाहिए? सोडियम पोटेशियम प्रॉपर अमाउंट, proper concentration. The action potential and the pacemaker potential of cardiac muscle. The ions are needed for generation of RMP, resting membrane potential, the action potential and the pacemaker potential of cardiac tissues. So potassium is mainly required for RMP, therefore determine the excitability. So sodium and calcium mainly required for action potential. Potassium and calcium are mainly required for pacemaker potential. Concentration of calcium is required for the muscle contractility. Effects of alteration of these ions. तो देखो सोडियम पोटाशियम कैल्शियम हमें चाहिए हार्ट के कंट्रैक्शन के लिए या हार्ट के फंक्शंस के लिए. तो जो पोटाशियम है it is responsible for generating for RMP and therefore it determines the excitability. सोडियम एंड कैल्शियम एक्शन पोटेंशियल्स के लिए चाहिए. पोटाशियम एंड कैल्शियम पेसमेकर के लिए चाहिए. कंट्रैक्शन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम मसल की कॉन्ट्रैक्टिलिटी के लिए चाहिए. अगर इन आयंस में चेंज हो तो क्या होगा? अगर एक्स्ट्रा सेलुलर सोडियम कम होगा, डिक्रीज होगा, तो सोडियम इज़ रिक्वायर्ड फॉर एक्शन पोटेंशियल ऑफ कार्डियक मसल. सोडियम किस लिए चाहिए? एक्शन पोटेंशियल ऑफ कार्डियक मसल. देयरफॉर डिक्रीज एक्स्ट्रा सेलुलर सोडियम कंसंट्रेशन डिक्रीजेस एक्साइटेबिलिटी ऑफ हार्ट. हार्ट की जो एक्साइटेबिलिटी है वो कम हो जाएगी, हार्ट कम एक्साइट होगा. ठीक है. डिक्रीज एक्स्ट्रा सेलुलर पोटेशियम. तो डिक्रीज एक्स्ट्रा सेलुलर पोटेशियम डज नॉट अफेक्ट एक्साइटेबिलिटी सिग्निफिकेंटली. अगर पोटेशियम एक्स्ट्रा सेलुलर पोटेशियम कम होता है तो ज़्यादा फर्क नहीं आता एक्साइटेबिलिटी पे. लेकिन अगर इंक्रीज़ हो रहा है पोटेशियम एक्स्ट्रा सेलुलरली इंक्रीज़ हो रहा है इन द ECF causes depolarization and loss of excitation and finally results in cardiac arrest in diastole. कार्डियक अरेस्ट इन डायस्टोल हो जाएगा. अगर पोटेशियम थोड़ा भी इंक्रीज़ हो गया ECF में, कम हो रहा है पोटेशियम कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर ज़्यादा हो रहा है तो फ़र्क पड़ता है. एक्स्ट्रा सेलुलर इंक्रीज्ड एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम. अगर कैल्शियम बढ़ रहा है तो इंक्रीज इन एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम इंक्रीजेस द फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन. अगर एक्स्ट्रा सेलुलर पोटेशियम कैल्शियम इंक्रीज़ हो रहा है, एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम इंक्रीज़ हो रहा है तो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन इंक्रीज है एंड द कंसंट्रेशन वेरी हाई कार्डियक अरेस्ट इन सिस्टोल. कैल्शियम बहुत ज़्यादा हो गया कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा सिस्टोल में. पोटेशियम ज़्यादा हो गया कार्डियक अरेस्ट इन डायस्टोल. एक्साइटेबिलिटी डीपोलराइजेशन एंड लॉस ऑफ एक्साइटेशन. एक्साइटेशन ही नहीं हो पाएगा, एक्साइटेशन नहीं हो पाएगा तो वो डायस्टोल में ही रह जाएगा. अगर calcium is responsible for the muscle contractility and required pacemaker potential, and it is also required for action potential, pacemaker potential and muscle contractility. तो muscle contractility हो रहा है तो रिलैक्स ही नहीं हो पाएगा और वो सिस्टोल में चला जाएगा, अरेस्ट में चला जाएगा इन कार्डियक सिस्टम. एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम कम हो रहा है, डिक्रीज एक्स्ट्रा सेलुलर कंसंट्रेशन डिक्रीजेस द फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन कार्डियक अरेस्ट अकर्स इन डायस्टोल. फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन कम हुआ कार्डियक अरेस्ट इन डायस्टोल, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हो पा रहा है
So this is the mechanism of excitation. This is the thing about excitation contraction coupling. कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है और एक्शन पोटेंशियल के लिए चाहिए, पेसमेकर पोटेंशियल के लिए चाहिए, मसल के कॉन्ट्रैक्टिलिटी के लिए चाहिए. सोडियम किस लिए चाहिए? सोडियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्शन पोटेंशियल. पोटेशियम इज फॉर रिक्वायर्ड फॉर RMP, excitability and pacemaker potential. RMP, excitability, pacemaker, action potential, pacemaker and muscle contractility, calcium. तो ये 3 आयोन्स चाहिए, इनके लेवल्स नॉर्मल रहना चाहिए हमारे हार्ट के प्रॉपर फंक्शन के लिए. कैल्शियम कम होता है कार्डियक अरेस्ट एंड डायस्टोल. कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है, एक्स्ट्रा सेलुलरली की बात करें हम, एक्स्ट्रा सेलुलर ही है, बहुत ज़्यादा हो गया कैल्शियम, कार्डियक अरेस्ट एंड सिस्टोल. बहुत कम हो गया कार्डियक अरेस्ट एंड डायस्टोल, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट नहीं हो पाएगा, डिक्रीज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, इसलिए डायस्टोल हो जाएगा अगर कैल्शियम बहुत कम है. इंक्रीज द कैल्शियम, सिस्टोल में कार्डियक अरेस्ट, क्योंकि फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा. फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन कैल्शियम. ठीक है, तो अब हम बात करते हैं एक केस के बारे में. 42-year-old लेडी प्रेजेंटेड विद इजी फैटिगेबिलिटी, dyspnea and exertion. She is giving history of excessive menstrual, loss of blood, examination pallor is present. क्लिनिकल डायग्नोसिस है कि बहुत ज़्यादा इनका ब्लड लॉस हुआ है, इस वजह से इनको क्या हुआ है डायग्नोस करते हैं. क्लिनिकल डायग्नोसिस, कॉज फॉर दिस कंडीशन, इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट. एंड व्हाट विल हैपन इफ कॉम्प्लिकेशंस लेफ्ट अनट्रीटेड. शॉक में चल जाएगी बंदी. 42-year-old लेडी, राइट. तो मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस हुआ है, इस वजह से उनको बहुत सीवियर प्रॉब्लम्स होंगे. ठीक है, तो अब हम बात करेंगे. दैट वाज द बिकॉज ऑफ ब्लड लॉस, एक्यूट ब्लड लॉस, एंड इसकी वजह से शॉक में जाएंगी अगर अनट्रीटेड रहेगा तो. एंड कॉज फॉर दिस कंडीशन की बहुत ज़्यादा वॉल्यूम लॉस हुआ है, फ्लूइड लॉस हुआ है, एंड RBC हेमोग्लोबिन लॉस भी हुआ है. इन्वेस्टिगेशंस आपको RBC, ब्लड काउंट, CBP कराना पड़ेगा. अब हम बात करें लैंडस्टीनर्स लॉ. तो द लॉ स्टेट्स दैट इफ़ अ पर्टिकुलर एग्लूटिनोजन किसको बोलते हैं, इज प्रेजेंट ऑन द रेड सेल मेम्ब्रेन ऑफ एन इंडिविजुअल, द करस्पॉन्डिंग एग्लूटिनिन मस्ट बी एब्सेंट इन दिस प्लाज्मा. उल्टा भी बोल सकते हो, एग्लूटिनेशन इज एब्सेंट इन रेड सेल, करस्पॉन्डिंग एग्लूटिनिन मस्ट बी प्रेजेंट इन द प्लाज्मा. अब एग्लूटिनिन क्या है? एग्लूटिनोजन इज एंटीबॉडी एंड एग्लूटिनिन इज एंटीजन. ठीक है, सॉरी, जो एग्लूटिनिन है वो क्या है? सही बोला है मैंने. जो एग्लूटिनोजन है वो एंटीबॉडी, एग्लूटिनिन एंटीजन है. So, Galston law states that if a particular agglutinogen is present on the red cell membrane of an individual, the corresponding agglutinin must be absent in the plasma. Plasma में वो particular antibody, sorry, agglutinin है वो antibody है, antibody, not the antigen, sorry. agglutinin एक antibody है. I mean to say कि जो agglutinin है वो antibody है. Agglutinin is antibody. Agglutinogen is the antigen. Agglutinogen, antigen, gen you have to correlate.
So this law says that if a particular agglutinogen is present on the red cell membrane of an individual, the corresponding agglutinin must be absent in the plasma. If a particular agglutinogen is present on the membrane of the red blood cell membrane of the red cell of an individual, then the corresponding agglutinin must be absent in the plasma. नहीं तो वो दोनों मिलके क्या करेंगे, डिस्ट्रक्शन हो जाएगा फिर. This law holds good for ABO system. However, the second part of the law does not apply for RH and many other blood group system, as there are no naturally occurring agglutinins in the system. In this RH system, no naturally agglutinins naturally नहीं रहते हैं. जैसे RH पॉजिटिव मतलब एंटीजन है RH के लिए RBC मेम्ब्रेन पे पॉजिटिव बोलेंगे. RH पॉजिटिव. RH नेगेटिव मतलब जो एंटीजन है वो नहीं है, एग्लूटिनोजन नहीं है RBC मेम्ब्रेन के ऊपर. नेचुरली तो RH एंटीजन एग्लूटिनेट नहीं रहता है, तो दैट्स व्हाई इट्स नॉट गुड फॉर RH एंटीजन सिस्टम. एंटीजन एंड एंटीबॉडी फॉर ABO ब्लड ग्रुप्स. ABO ब्लड ग्रुप जैसे ब्लड ग्रुप A है तो उसका एंटी-B एंटीबॉडी जो है प्लाज्मा में होता है, प्लाज्मा में रहता है. अगर एंटी-A एंटीबॉडी रहेगा तो फिर गया बंदा, इसलिए एंटी-B एंटीबॉडी. तो इसलिए अगर आप B ब्लड दे दोगे तो फिर वो गया ना, क्योंकि B ब्लड के और B ब्लड के अंदर क्या रहते हैं, B एंटीजन रहता है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर और एंटी एंटीबॉडी रहता है. ब्लड ग्रुप AB में कोई एंटीबॉडीज़ नहीं थी, क्योंकि AB एंटीजन दो भी एंटीबॉडी नहीं ले सकते. ब्लड ग्रुप O में क्या है, एंटीजन ही नहीं है तो एंटीबॉडी दो भी है. ठीक है, तो ये है ABO एग्लूटिनिन्स जो हैं टू टाइप्स के होते हैं एग्लूटिनिन्स मतलब एंटीबॉडीज़. एक है एंटी-A जिसको अल्फ़ा बोलते हैं, एंटी-B. द अल्फ़ा एग्लूटिनिन हैज़ टू सब टाइप्स, अल्फ़ा प्रॉपर एंड अल्फ़ा 1. Occurrence. These antibodies are found in plasma. Generally, an antibody is formed against a particular antigen if there is exposure to that antigen. तो डिफरेंट टाइप के ब्लड ग्रुप्स होते हैं. डिफरेंट टाइप के ब्लड ग्रुप्स होते हैं. ओह माय गॉड, मेरी चार्जिंग ही नहीं हो रही. तो डिफरेंट टाइप के ब्लड ग्रुप्स होते हैं. व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स? बॉम्बे ब्लड ग्रुप. ABA ब्लड ग्रुप होता है, ABO ब्लड ग्रुप, बॉम्बे ब्लड ग्रुप. तो बॉम्बे ब्लड ग्रुप क्या होता है, भिंडी है ना, भिंडी एंड भाटिया एंड डेस्फांडे discovered a new blood group called Bombay blood group. So these individuals lack the H gene, therefore the basic precursor substance can't be converted into H substance. This in turn results in failure to form A or B antigen. When their blood sample is tested for routine AB grouping, they will be labeled as blood group O. However, their serum contain anti and anti-B and anti-H antibodies. Anti-H भी रहते हैं इनके पास. These individuals, therefore, whenever needed, should be transfused with only Bombay blood group. तो इसलिए उनको सिर्फ बॉम्बे ब्लड ग्रुप देना पड़ेगा. एक बार आप सीरम का एनालिसिस करें कि अगर सीरम में एंटी-A मिल रहा है, एंटी-B मिल रहा है, एंटी-H भी मिल रहा है, तो वो बंदे को क्या करोगे, वो बंदे को सिर्फ बॉम्बे ब्लड ग्रुप देना पड़ेगा. नॉर्मल ब्लड ग्रुप O ब्लड ग्रुप दे दोगे तो क्या होगा, एंटी-H जो है वो ख़राब कर देगा. ठीक है, तो दिस इंडिविजुअल्स इनके पास H जीन नहीं होती, बिकॉज देयरफॉर द बेसिक प्रिकर्सर सब्सटेंस कांट बी कमिंग टू H सब्सटेंस. H सब्सटेंस में नहीं बन सकते जो प्रिकर्सर्स हैं. फेलियर ऑफ AB एंटीजन नहीं बन पाता. H जीन ही नहीं है, H जीन समझ रहती है. एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस देखा है ना, RH पॉजिटिव
फीटस है, RH नेगेटिव मदर है, तो जो फीटल ब्लड है वो लीक होता है जब मदर से सेपरेट होता है ड्यूरिंग प्लेसेंटल सेपरेशन. A small amount of fetal blood leaks into the maternal circulation. तो एक बार उसमें सर्कुलेशन में हो गया तो फिर वो बना लिए गए एंटी RH एग्लूटिनेंस. अब एंटी RH एग्लूटिनेंस एक बार बन गया, फिर नेक्स्ट प्रेगनेंसी में वो और एक्टिव हो जाएंगे, फिर फीटस को मार देंगे. तो फीटस को इसलिए एनीमिया रहेगा. द डिग्री ऑफ हेमोलाइसिस बिकम सीवियर थर्ड एंड सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज. प्रेगनेंसी के टाइम पे द सिमिलर RH इनकम्पैटिबिलिटी अकर्स इन प्रेगनेंसीज. RH नेगेटिव मदर, RH पॉजिटिव फीटस. तो इन फीटसेस का क्या करें, इन बेबीज़ का, न्यूबॉर्न्स का, जिसके पास 50% ऑफ द फीटसेस एंड न्यूबॉर्न्स विद द ब्रेस्ट फीटस हैव माइल्ड हेमोलाइसिस एंड डू नॉट रिक्वायर ट्रीटमेंट. सीवियर केसेस में मेजर मोडालिटीज ऑफ ट्रीटमेंट आर इंट्रायूटेराइन फीटल ट्रांसफ्यूशन, एक्सचेंज ट्रांसफ्यूशन एंड फोटोथेरेपी. क्योंकि जॉन्डिस हो जाते हैं ना तो फोटोथेरेपी देना पड़ता है. न्यूनेटल जॉन्डिस जो होता है जहाँ पे अनकॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया देखने को मिलता है. हेमोलाइटिक एंड अनकॉन्जुगेटेड. तो bilirubin in excess is toxic to the body, especially it produces neurotoxicity. However, bilirubin on exposure to light undergoes structural and configurational isomerization and photooxidation. These changes bilirubin make it less toxic and less lipophilic products that are excreted efficiently without hepatic conjugation. Phototherapy is the primary treatment for unconjugated hyperbilirubinemia in newborns. तो फोटोथेरेपी में उसका जो आइसोमराइजेशन, फोटो ऑक्सीडेशन, स्ट्रक्चर एंड कॉन्फिगरेशन आइसोमराइजेशन होता है बिलिरुबिन का, और बिलिरुबिन को लेस टॉक्सिक कर दिया जाता है, लेस लिपोफिलिक प्रोडक्ट एक्सक्रीटेड विदाउट हेपेटिक कॉन्जुगेशन. ओके, फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूशन की बात करेंगे. तो ठीक है, तो इंडिकेशंस फॉर ट्रांसफ्यूशन. आपको ब्लड ट्रांसफ्यूशन कब करना है? तो एक्यूट ब्लड ट्रांसफ्यूशन, ब्लड लॉस हो रहा है, जैसे होल ब्लड इज प्रीफर्ड. क्रॉनिक एनीमिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया. तो क्रॉनिक एनीमिया हो रहा है, जैसे थैलेसीमिया है, सिकल सेल एनीमिया है. ठीक है. बोन मैरो फेलियर, ल्यूकेमिया, एप्लास्टिक एनीमिया, ब्लड सेल से नहीं बन रहे. ठीक है. बोन मैरो इन्फिल्ट्रेशन बाय न्यूप्लास्टिक सेल्स. पुरपुरा, प्लेटलेट ट्रांसफ्यूशन, क्लॉटिंग फैक्टर डेफिशिएंसीज, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा इज प्रेफर्ड. जब प्लाज्मा दो गया, क्लॉटिंग फैक्टर डेफिशिएंसी. हीमोफीलिया, क्रायोप्रेसिपिटेट ऑफ फैक्टर 8. प्रिपरेशन फॉर सर्जरी एंड ड्यूरिंग सर्जरी की ब्लड की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है. एंड बर्न्स. प्रोसीजर फॉर ब्लड ग्रुप. तो ब्लड ट्रांसफ्यूशन के लिए प्रोसीजर क्या है? पहले तो आपको सेफ्टी ट्रांसफ्यूजन शुड ऑलवेज इंक्लूड सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट डोनर के बारे में बात करें कि डोनर के लिए क्या है. ABO एंड RH टाइपिंग रहनी चाहिए, क्रॉस मैचिंग होनी चाहिए. एंटीबॉडी स्क्रीनिंग ऑफ द पेशेंट, डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ क्लिनिकली सिग्निफिकेंट एंटीबॉडीज अगर हैं तो. अप्रोप्रिएट डोनर. हेल्दी डोनर्स फ्री फ्रॉम ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिसिबल डिसीजेज शुड बी आइडेंटिफाइड फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन. हेल्दी डोनर्स फ्री फ्रॉम ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिसिबल डिसीजेज should be identified by blood transfusion. Ideally, the age of donor should be 18 years or above. एज ऑफ डोनर 18 साल से ज़्यादा होना चाहिए.
प्रेफरेबली शुड नॉट बी एबो 60 ईयर्स। 60 ईयर्स से ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर उनको परेशानी हो जाएगी। तो 60 ईयर्स से ज़्यादा नहीं, 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। डोनर शुड बी वॉलंटरीली विलिंग टू डोनेट ब्लड। ज़बरदस्ती नहीं, नहीं मैं ब्लड नहीं देना चाहती, विलिंग रहना चाहिए।